Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So all the 4 shifts are now over. Whatever is your attempts, simply tell in comment column. At around 8 p.m. or 8:30, we will try to figure out the likely cutoff and I will post a video. But one advice to each one of you. Now, whatever is your performance, whatever is your attempt, take a sound sleep. And after taking sound sleep, start preparation for main from tomorrow onwards. Follow the guidance given in daily video. Simply focus that exam and prepare. Next 2 months, there is no prim examination now. You have ample time. Nobody knows what will be final cutoff. So don't get away by so many people telling this thing, that thing. Simply believe in God and your hard work. And then focus on your study. If you continue to study, in next 2 months, you are not going to lose anything. Rather, you are gaining knowledge. And with God's grace, if you clear the prim, you are ahead of others and you will be able to pass mains examination and also pass the interview. So don't carried away by speculation that is spread across social media. Many people may be guessing, many people may be telling something, some people may be telling high attempts, some people may be telling low attempts. Don't bother what is your attempt vis-a-vis attempt of others. Believe in your hard work. Believe in God and believe my words. You may get a chance. Last year also, after IBPS PO examination, many people said cutoff will be very high, 80, 72, this, that. I put a video wherein I told people that even a person who has attempted 60 has a chance. And what was the final cutoff? 59. So, high cutoffs are only mirage. Normally, cutoffs are low. They are well within the range of people of an average candidate. Because out of the current lot, they have to take 10 to 15% candidate for main examination. So if most people could not perform well, they will take the average performance person to the next stage. Don't bother if 1, 2, 3% people have outperformed. That will always happen. Don't bother about 1 to 3% people. More important is they are going to take 10-12% people out of people those have appeared for the examination. That is important. This year number of people those have applied for this post is less. Even the people those have appeared for the examination is also less. The initial indication says that this year attendance is very, very low as compared to previous years. The actual percentage we will come to know when all the 3 days examination is over. So since attendance is low, there is no fresh candidates and number of candidates is also low, the cutoff can be anything. So what is the right approach? Don't waste time. Take proper rest today. Today you are exhausted, you have appeared for the examination. One day you should take rest. Tomorrow onwards, you should focus all main examinations and prepare for one main on one day. And that will be our strategy for next 2 months. I will be posting one video daily on a particular exam. Focus on that exam. Simply follow the footsteps. You must have seen more than 11,000 subscribers are there. Those have already got the job. They are working in banking, insurance or other sectors. And you must be reading comments of many people. Those are appreciating the effort of this channel. This channel is right advice at right time. I always give you right advice, sane advice, advice that will help you in building your career. There is no point creating panic among people
The candidates will be selected out of this lot only. So one of you will be selected. There are vacancies. They have to take people. From where they will take? The people those have appeared for the examination. Don't be carried away by the large figure put in by someone. You are not able to recognize who is giving this figure. Say a person says, I have attempted 85. Can you recognize him? Today I have got one comment. He said, I attempted 98. Can I believe that figure? No. So don't worry. Don't worry. That is what I am trying to say. Now today is over. Think of tomorrow. Tomorrow is a new beginning. Start preparing for main irrespective of your attempts. People will try to suppress your feelings. Don't be carried away by these people. Be bold. Take initiative. Move in a right direction. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज के चारों शिफ्ट खत्म हो गए. आपने जो करना था आपने कर दिया. अब बिना मतलब की चिंता नहीं करनी है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा. आपने मान के चलना है आप पास होंगे, जितने मर्जी आपके कम अटेम्प्ट है. आज आप थके हुए हो, आज आप रेस्ट करिए, पर कल से मेन की तैयारी शुरू कर दीजिए. सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी. कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा वो है. बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. पिछले साल का एग्जांपल ले लीजिए. जो लोग 2019 में मेरे चैनल पे थे, काफ़ी लोगों की सिलेक्शन हो गई. अब तो सिर्फ वो ज्वाइन करने जा रहे हैं. तो काफ़ी जगह ये बातें चल रही थी कि 72 होगा, 74 होगा, 80 होगा कट ऑफ. कोई कहता स्टेट बैंक से भी ज़्यादा होगा. आपके इस चैनल पे ये बताया गया कि 60 कट ऑफ वाले का भी चांस है. जानते हो कितना कट ऑफ आया? 59. तो यदि उसको 72, 74, 75 को देख के लोग पढ़ना छोड़ देते तो क्या वो फाइनल सिलेक्शन लेते? क्या आपके चैनल पे वो लिखते कि मेरा सिलेक्शन हो गया? 3000 से अधिक लोगों को नौकरी मिली है IBPS CRP 9 के अंदर, हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स थे. कोई छोटा आंकड़ा नहीं है. 3000 क्यों संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उनका समय समय पे मैंने आत्मबल बढ़ाया, उनको सही रास्ते पे चलाया और उनमें हिम्मत बनाए रखी. अगर आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो आप जीतेंगे जरूर. आपको कोई हरा नहीं सकता. और यदि लोगों की बातों में आके हिम्मत हार के बैठ गए, पढ़ाई छोड़ के बैठ गए, अचानक रिजल्ट आया प्रीम का, आप तो पास हो गए, ओहो आपको हो गए 14 दिन तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब मैं क्या करूं, हाथ पैर भूल जाएंगे. तो यदि आप पढ़ते रहोगे आपको कोई क्या नुकसान होना है भाई? क्या होगा? या तो पेपर पास होगा या फेल होगा. इसके अलावा तो कोई आसमान टूटने वाला नहीं है. पेपर पास हो गया तो नेक्स्ट फेज में बैठ जाना. पास नहीं हुए तो क्या हो गया? नॉलेज ही तो आई है, वो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी. एग्जाम तो देते ही रहना है ना जब तक नौकरी नहीं लगनी. तो कुछ आपका घटने वाला नहीं है, कुछ आपका कम होने वाला नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला है. तो हम अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे. हम इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा प्रीम पास होगा कि नहीं होगा. हाँ, टेंशन होती है. इस टेंशन को दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे. 8, साढ़े 8 बजे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डालूंगा ताकि आपका मन शांत हो जाए. मगर ये नहीं है कि किसी ने कह दिया बहुत हाई कट ऑफ होगा, निराश होकर बैठ गए. अभी एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया कि मेरे को अपना जीवन लेने का दिल कर रहा है, सुसाइड करने का दिल कर रहा है. ऐसा क्यों? अरे कुछ नहीं बिगड़ा है. जिंदगी में मौके आते रहते हैं. निराश नहीं होना है बेटे, निराश नहीं होना है. ये जो बड़े बड़े लोग डाल देते हैं इतने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, ये फेक भी तो हो सकते हैं ना. आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकता. आप विश्वास करो अपने ऊपर, अपने जीवन को लेना कि बिल्कुल मत सोचना कोई भी. और टफ कंपटीशंस होते हैं, आशा निराशाएं आती हैं,
मैं इसीलिए ये वीडियो स्पेशली डाल रहा हूँ। जब मैंने उस बच्चे का कमेंट पढ़ा मेरे को काफ़ी आघात लगा। ऐसा बिल्कुल कभी जीवन में मत सोचना। हिंदू धर्म में कहा गया पता नहीं कितने हजार योनियों से गुजरने के बाद मानव का चोला मिलता है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप? मुश्किलें आती हैं जिंदगी के अंदर, क्या हो गया? एक एग्जाम कोई एंड नहीं है जिंदगी का। बहुत एग्जाम आएंगे, बहुत एग्जाम। और ऐसे ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी यहाँ देना चाहता हूँ। हमारी क्लास में एक लड़का था, जब हम 11वीं क्लास में थे, उस समय 10+2 नहीं था, 11th होती थी हायर सेकेंडरी। उस लड़के के बहुत कम नंबर आए, हम सबके अच्छे अच्छे नंबर आ गए, हमें कॉलेजों में एडमिशन मिल गया। उस लड़के को एडमिशन नहीं मिला क्योंकि बहुत नीचे था, जस्ट पासिंग मार्क्स आए। उसके माँ बाप भी बहुत निराश हो गए, वो भी बहुत निराश हो गया। ऐसे ही उससे बातचीत चल रही थी। मैंने कहा आप रीअटेम्प्ट कर लो 11वीं, क्या हो गया? कम नंबर आए तो क्या हो गया, रीअटेम्प्ट कर लो। उस लड़के ने 11वीं रीअटेम्प्ट की, 11वीं रीअटेम्प्ट करके दिल्ली में टॉप किया और IIT में उसका एडमिशन हुआ। और उसके बाद वो इंजीनियर बन के बड़े हाई पोजीशन तक पहुंचा। तो एक एग्ज़ाम में कम आ जाने से, फेल हो जाने से कोई जीवन अंत नहीं होता है। भगवान ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है हमें पता ही नहीं होता है। तो अगर हमारा एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो मन को नहीं दुखाना है, आगे सतत प्रयास करते रहना है। अगर आज अच्छा नहीं गया कल अच्छा होएगा। तो जिनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ है वो भी तैयारी करेंगे, जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी तैयारी करेंगे। टाइम जाया नहीं करेंगे। ज़िंदगी के अंदर जो व्यक्ति समय को बेकार नहीं करता है और समय का सदुपयोग करता है, जीवन में उसके खुशियां आएंगी ही आएंगी। ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात। तो खुश होइए। और जो भी आदमी निराश है इस समय, जो भी कैंडिडेट निराश है, अपने चेहरे पे स्माइल लाइए और दोबारा जुट जाइए। ठीक है? बिल्कुल नहीं, कोई भी गलत और एक्सट्रीम स्टेप किसी ने नहीं लेना है और किसी ने निराशा में नहीं जाना है। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इस जीवन को संवारिए, आगे बढ़िए। एक अटेम्प्ट खराब हो गया कोई बात नहीं, बहुत एग्ज़ाम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है एग्ज़ाम नहीं होंगे, सब होंगे। बिल्कुल निराशा नहीं लानी है, आशावान रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।